हम लोग किसी का हम लोग भाभी है, किसी का माँ है, किसी का दादी माँ है, उन लोग का अभी छोटा छोटा बच्चा भी मोबाइल पकड़ता है, उसमें उसका नानी को किसी रात में किसी के साथ सो के आया है, ये दिस इज़ टू मच। ये जो we are talking about the Arunachal Pradesh Marriage and Inheritance of Property Bill 2021. When you look into the details of this one, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन में वुमेन कमीशन ने या APWWS के साथ मिल के ये ड्राफ्ट बिल बनाया है. तो there is a lot of confusion among the people regarding this one and all. So, since 2005, the Women Commission, when it was established since 2005, since then, always the Women Commission, which was led by Jarju Mehte Madam, who was the first chairperson of the Women Commission, उसमें गुमरी मैडम लोग भी था. Since then, they have been working for the women's rights and also against the evil practice of polygamy. और जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी तभी से चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था. लेकिन नाउ इट्स 2021, मोर देन 15 years हैव पास्ड जब ये वुमेन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था. एंड आप लोग मीडिया में भी देखते होंगे, बहुत बार लोग ट्रोलिंग करते हैं कि ये वुमेन कमीशन लोग क्या कर रहा है, ये वुमेन कमीशन लोग क्या कर रहा है, यहाँ मीटिंग बैठता है, वहाँ में मीटिंग बैठता है, लेकिन देर इज़ नो आउटकम. That is what all the women, folk and all they think. Even the intellectuals, they have this thing. हम लोगों का concern था कि this our fifth body of Women Commission, we were appointed in 2018 December. The day we were appointed, from the next month onwards, that is 2019, हम लोगों ने जितना भी awareness programs किया, उसमें हम लोगों ने मैरिज इश्यूज़, पॉलीगमी हो, उसके बाद वुमेन इश्यूज़, चाइल्ड राइट्स के बारे में, ड्रग अब्यूज़ एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स, हम लोगों ने जितना लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया है उसमें वी ऑलवेज स्पोक ऑन ऑल दिस इश्यूज़ एंड वी ऑल्सो टुक एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सनस, उनका ओपिनियन लिया. इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट वी हैड अराउंड 5 to 7 लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स. सो अगर आप देखोगे, because of the good fund we got from the government, we were able to conduct a good number of legal awareness programs also. उसमें repeatedly हम लोगों ने इस जो issue है इसके बारे में, polygamy के बारे में और land rights के बारे में हम लोगों ने discuss किया है. And ये overnight नहीं हुआ है, as I'm saying, since आपका 1979 when the Arunachal Pradesh Women Welfare Society was established, they are the leading NGO, women's NGO who are working for the women's rights. तब से हम लोग property rights के लिए fight कर रहे हैं. They are as old as me. And one of the pioneer members is sitting just beside me, Gumri Madam. She is the president of Arunachal Pradesh Women Welfare Society. At the same time, she is also the chairperson of the Child Rights Commission. So after we took over numerous जो legal awareness programs we conducted, around 100 legal awareness programs we have conducted in the last 3 years since 2019. In these all legal awareness programs, we consulted all the legal experts who worked as the resource persons, and also we talked with the CBOs who came and helped as resource persons. Even in the districts, the district legal services का जो magistrate है, they came as resource persons. So this is not a thing which we just drafted overnight. उसके बाद when we had International Women's Day since 2019, simultaneous since then, continuously for the last 3 International Women's Day, we have been conducting program on this issue. In 2020, we had 2 days seminar, जहाँ पे हम लोगों ने
कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड मैरिज राइट्स के बारे में एंड प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड इट वाज अ 2 days लॉन्ग सेमिनार. वहाँ पे हम लोगों ने जितना CBO से NGOs है एंड वी कॉल रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम ऑल द experts from academicians, experts we called and all. वहाँ पे you had representatives from the Monpa tribe, Adi, Apatani, Galo, Sherdopen, Mishmis, and almost all the tribes were there. Yobin was there, Khamti, Sajong, Miju, Digaru, Mishmi, Memba. So you had almost all the tribe representatives who gave the customary practices में क्या loopholes है, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए एंड व्हाट आर द दिस वन ड्रॉबैक्स इन द कस्टमरी प्रैक्टिसेस. उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैरिज प्रैक्टिसेस के बारे में एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स टू बी गिवन टू द गर्ल चाइल्ड और द वुमेन. नेक्स्ट उसके बाद देयर ऑल्सो वी हैड ऑल द CBOs कमिंग फ्रॉम different this one tribes, CBOs who participated, and we have Adibane Keba women wing, we had GWS का women wing, and Arunachal Pradesh Women Welfare Society का जितना भी आपका branch है all over the Arunachal, we invited all the president and secretaries. So it was a very big program which was organized in Don Bosco, and even the concern, we invited the concerned minister and WCD secretary, and they were really surprised to see the number of participants. So nobody can think that this is just an overnight draft which we did on our own. We have been consulting continuously for over a period of 3 years. At least this has been a continuous process for the last 3 years. And after that, in 2021, 8th March, on International Women's Day, the theme was Men for Women. And there also we had customary practices and property rights of women and girl child in the context of Arunachal Pradesh. We conducted this seminar, and it was a 3 days long program where all the CBOs were invited. We invited executive members from AITF also. APSU also was invited. Even the APSU president came. We invited Anya also, for that matter. Anya came to our first seminar which was conducted in 2020, 2 days long program. In 2021, there was a lots of discussion regarding whether a property right should be given. वहाँ पे क्या हुआ है? We invited the गाँव बुढ़ास also. Then we had conducted this program in collaboration with Arunachal Pradesh Women Welfare Society, WCD department, and also SALSA. तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जितना भी गाँव बुढ़ास है, वी हैड इन्वाइटेड देम ऑल्सो, एंड CBO मेंबर्स सब ट्राइब से आया था. हर ट्राइब का आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए तो हम लोग उसको भी आप लोग दिखा सकते हैं. तो वी हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम AP सालसा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गालो वेलफेयर सोसाइटी एंड इट्स वुमेन विंग, आदिबाने केबा एंड इट्स वुमेन विंग, निशी एलाइट सोसाइटी वुमेन विंग, मोनपा मिमांग शोकपा, साजोंग एलाइट सोसाइटी, आका एलाइट सोसाइटी, Tai Khamti Singpho Council, ये है all whoever attended that program. Nokte Welfare Forum, CBOs, NGOs, Apatani Women Association Zero, and Nishi Nyam Acham members were also there. Then we had academicians, intellectuals, advocates, student union leaders. Even we invited the APSU also. Even APSU president also came for that meeting, for that matter. And there we discussed regarding whether girls should get property rights or not. And secondly, what to do regarding to finish off with this practice of polygamy. At the end of the 3 days program, jitne bhi participants the, and also from various branches of APWWS, we had president madam bhi the, secretary bhi the उसमें. तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था, at the end of the program, we divided the groups into the whole participants into large number of groups. अलग अलग ग्रुप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था, जहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स लोग भी थे, उसमें आपका गांव बूढ़ा लोग भी थे. देन वी हैड अ ग्रुप डिस्कशन, एंड इन द ग्रुप डिस्कशन it was each group gave their own representation, and each group came up to this conclusion that property right should be given to the women of Arunachal Pradesh, women and girl child, and polygamy should come to an end through whatever legal process and all. So वो हम लोगों ने decide किया था उसमें. तो उसके बाद after this thing आपका ये आ गया, and we had to this one because of the pandemic and all, 1-2 महीना हमारा थोड़ा lapse हो गया. Thereafter, subsequently on 25th July, a drafting committee
we called all the CBOs in the office of the Women Commission on July, 11th July. Before 11th July, there was a meeting held in our office, in Women Commission's office, where we invited the CBOs and even APWWS members. And we discussed regarding there can be a common law for Arunachal Pradesh on the similar lines that the state of Mizoram has. Mizoram has, is a Christian state, no doubt. तो वहाँ पे भी बहुत सारा ट्राइब्स है, but they have a common law for the whole state, मिजोरम में. तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया था, हम लोगों ने वहाँ पे चर्चा किया था कि क्या अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा हम लोग कुछ कॉमन रूल बना सकते हैं फॉर द होल स्टेट, and also taking into consideration the numerous legal awareness programs and also the seminars we had conducted. तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था, even the advocates were there, we had decided कि for the whole of Arunachal Pradesh a common law should be there for marriage and inheritance of property bill. We are not talking about other customary practices and all. We are just talking about the marriage and inheritance part. So it was agreed by most of the CBOs who were there that a wider consultation will be needed, and we'll invite all the CBOs, main CBOs if not possible also, and invite them to be a part of the drafting committee. Thereafter, on 11th July 2021, at Hotel Pibes, at the initiative of Women Commission, a bill was drafted by the drafting committee, and all the various CBOs, including AITF, was invited, APWWS and its executive members, Galo Welfare Society Women Wing, Adi Bane Keba Women Wing, Nishi Allied Society Women Wing, Mishmi Welfare Society, Nishi Nyam Acham, उसके बाद Students Union, and since Apex body is headed by APSU, we called APSU also for that program, and advocates from Bar Association, and also from university, we invited all the academicians and all to participate in that process. तो clause by clause वहाँ पे हम लोगों ने discuss किया था. We had asked the drafting committee led by a senior advocate to draft a bill for the people of Arunachal Pradesh, and we had discussed clause by clause. हर act को हम लोगों ने discuss किया था in detail. कौन सा एक्ट को रखना चाहिए, कौन सा एक्ट को छोड़ना चाहिए, उसमें हम लोग क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ. एंड इट वाज नॉट लाइक कि ओवरनाइट आपका कोई एक्ट बन गया है. इन दिस टाइम्स व्हेन नोबडी इज इवन रेडी टू गो एंड सिट इन द मीटिंग, एवरी मेंबर टुक द रिस्क एंड दे केम टू होटल पाइबीज, और दिन भर बैठा उसमें. दे हैड ब्रेकफास्ट, लंच, टिल आफ्टरनून दे वर देयर. 4 बजे तक वहाँ पे था हम लोगों ने. एंड देन we had again come to this one कि after debating and all, we came to कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन को रखना है, नहीं रखना है. And then on 25th July 2021, the final drafting committee meeting was held at DK Convention Hall, IG Park. And there, the representatives were AP Salsa, BJP Mahila Morcha ka president and the executive members were there, all Arunachal Pradesh Students Union, Nesh Women Wing, Arunachal Pradesh Women Welfare Society CEC, and the APSCW members were there in the final drafting committee meeting. And as you might have already seen, आप लोगों ने सुना होगा कि APSU का जो प्रेसिडेंट है वो खुद भी बोला है कि वो ड्राफ्टिंग कमिटी मीटिंग में था. And we had also called AITF executive members, but I don't know for what reason they could not be there. अभी हम लोग क्या करते हैं, after that, in that there was discussion regarding each and every section of the act. उसके बाद हम लोगों ने फाइनल बनाया है. So we had 3 rounds of meeting, and before that 3 continuous years of seminars and legal awareness programs, and in each district we are going, leaving our family. Since the winter time, 4-5 months we are out of our station. We had not done something like this just overnight. And before that, you see, since 1979, the women's movement have been working for women's empowerment. And some people in Arunachal, they are sometimes trolling कि ये क्या कर रहा है, से भाषण दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. और अगर हम लोग इतना मेहनत करके एक बिल, हम लोग अगर बिल ड्राफ्ट बनाता है, अगर उसमें कुछ भी कमियां हैं, अगर आप लोगों को लगता है उसमें कुछ भी खामियां हैं, तो everybody has a right to place your
grievances through a proper NGO, through your concerned CBO. So after all this, we have been trying to get the appointment with Honorable CM, but he was out of station. So ultimately, when we got our appointment with the Honorable CM, he said that he will look into the matter because he believes in gender equality. He believes in property rights for women, for girl and women, and he also believes that the practice of polygamy has to be abolished. Even in International Women's Day 2021, we had invited the Honorable CM as the chief guest. And that program was a grand success, and it was a very good one also. And the Honorable CM had promised that he will look into the grievances of the women. Even there he had given his assurance that जो भी आएगा वुमेन ये कमीशन से या APWWS से उस मुद्दे को वो seriously लेगा. And we are very thankful to him for taking women's issues seriously. उसके बाद क्या हो गया है? Then we presented the drafting committee का जो बिल है, हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट कॉपी को गवर्नमेंट को प्लेस किया. Government said कि after proper consultation with all the CBOs and after the due process जो एक होता है डिपार्टमेंट से होके जाके लॉ डिपार्टमेंट से जो जाता है उसको तो बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में तो होगा नहीं. तो ही सेड ये असेंबली में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट असेंबली में हम लोग देखेगा, बट wider consultation is necessary. That was his word. And he said that he will consult the CBOs before taking final decision. And day before yesterday, when there was a program in DK Convention Hall, there also the Honorable CM said that he will look into the matter. He will call all the CBOs for wider discussion on this topic. And then he asked and encouraged all the CBOs to come forward for the discussion. तो वी आर हैप्पी. अभी ये इश्यू अगर जो भी तरीके से मीडिया में आया होगा तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें जो भी पॉजिटिविटी भी आया है, जो एडवांटेज है, उसको भी आप लोग ब्लाइंडली जो मीडिया पर्सन से या द मास ऑल्सो इवन द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश शुड नॉट ब्लाइंडली ओवरलुक द होल एक्ट एंड जस्ट गो इनटू द नेगेटिविटी ना. अगर आप लोगों को लगता है कोई भी सेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू हैव अ प्रॉपर फोरम, यू हैव योर NGO, यू हैव योर CBOs, प्लीज प्लेस योर ग्रीवेंसेस थ्रू द प्रॉपर फोरम, थ्रू योर प्रॉपर CBOs. आप लोग ऐसा करते हैं. उसमें इवन द ऑनरेबल मिनिस्टर रिजिजू सर ने क्या बोला है, ही राइटली सेड डे बिफोर यस्टरडे कि हमारा यूथ लोग क्या होता है कि आपको एक फेसबुक मिल गया, व्हाट्सअप मिल गया, जो चाहे आप लिख रहा है, बट हैव यू स्टडीड द बिल? आई हैव टोल्ड मेनी पीपल, अगर आपको बिल के बारे में कुछ मालूम होना है, प्लीज़ आस्क अस. उसके बाद आप लोग आपने फेसबुक में कुछ देख लिया, यू आर गिविंग रिएक्शंस. सो आई डोंट थिंक दैट इज़ हाउ अ सिविल सोसाइटी शुड बी वर्किंग. अ सिविलाइज सोसाइटी इज़ नॉट सपोज टू वर्क दैट वे. जो भी आप लोगों को कहना है, यू कैन प्लेस योर ग्रीवेंसेस थ्रू अ प्रॉपर फोरम, थ्रू अ प्रॉपर CBO एंड योर NGO. एंड उसके बाद आप देखिए कि we are very grateful to the present government under the leadership of Shri Pema Khandu that he has taken women's issues seriously. And I would also request him to take into consideration all the CBOs properly, because जब हम लोग बुलाते हैं as a commission, as APWWS, in each seminar and all, we send around 2,000 to 3,000 invitations. Hardly how many NGOs come forward? Hardly 300-400. हम लोग भेजते हैं 4,000-5,000 invitations in each of the 2 to 3 days seminar. In each district awareness programs, the APWWS branch and all, they invite all the people. How many people turn up? और जब हम लोग प्लेस करते हैं तब बोलते हैं we have not been asked, we have not been consulted. When we call for the meeting, nobody turns up. And people who were there in the meeting also, they are not able to take stand. So I request all the people कि अगर आपको कोई particular section, कोई पर्टिकुलर एक्ट, उसके एक्ट के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन से अगर आपका कोई भी नाराज़गी है तो आप उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर फोरम आप लोग अपना ग्रीवेंसेस प्लेस कीजिए, थ्रू योर कंसर्न्ड NGO. नॉट जस्ट राइटिंग एनीथिंग इन द फेसबुक एंड व्हाट्सअप एंड गोइंग पर्सनल. हम लोग को गाली देते देते आप गवर्नमेंट को गाली दे रहा है. ही शुड स्टेप डाउन. फॉर व्हाट?
he is a young and energetic chief minister who is ready to at least listen. कल को ये होगा नहीं होगा वो अलग बात है, एटलीस्ट वो सुनने के लिए रेडी है. तो आप लोग अगर अपनी महिलाओं का दुख और कष्ट को सुनना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिकली जब हम लोग कमीशन में हैं, क्या इश्यूज हम लोग फेस करता है, क्या प्रॉब्लम फेस करता है, वी नो. आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट कम टू वुमेन कमीशन वाइल सॉल्विंग अ केस. वी आर अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. जब भी कोई केस आता है हमारे यहाँ पे, इफ़ सपोज अ वुमेन कम्स एंड सेज कि मेरा हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, उसके बाद क्या होता है, डीवी एक्ट के अंदर में वो केस रजिस्टर होगा, डीवी एक्ट के अंदर में वहाँ पे कंसर्न कोर्ट में जाएगा. बट इफ शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेकेंड वाइफ, इफ शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेकेंड वाइफ, द हस्बैंड गिव्स अ 2 ऑप्शंस. या तो आप पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन बन जाओ, या तो आप ये दरवाजे से बाहर चला जाओ ना. ये एक ऑप्शन देता है, बिकॉज शी हैज़ नो अनदर ऑप्शन, because she cannot go back to her house. She is the mother of 4 to 5 children. She has to think about the welfare of her children. क्या करता है वो, polygamy को accept करता है. So you cannot say, many of us say, आप लोग सिर्फ polygamy का बात कीजिए, property rights के बारे में बात मत कीजिए. These two are interlinked problems. हम लोग बोलते हैं कि polygamy को हटाओ. polygamy को कैसे हटाएगा? वो first wife under economic pressure, because she has no right. She cannot go back to her parents. She has no right from her parents. उसको वहाँ से एक टुकड़ा, एक 5% भी नहीं देता है. अच्छा, जो समझदार पेरेंट्स है वो लोग देता है, बट एज ऑफ लॉ इट इज़ नॉट देयर इन अरुणाचल प्रदेश. सो शी हैज़ टू एक्सेप्ट द हर फेट. जब तक पति ठीक है, शी गेट्स टू कलेक्ट द रेंट एंड शी इज़ एबल टू कलेक्ट ऑल द मनी एंड ऑल. द डे उसका हस्बैंड को दूसरा औरत पसंद आ जाता है, एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सेकेंड वाइफ, शी इज़ शोन द डोर. उसका घर का दरवाज़ा दिखाया जाता है कि ये रास्ता से आप बाहर निकल जाओ. अगर आप सेकेंड वाइफ को एक्सेप्ट करेगा तो आपको पूरा प्रॉपर्टी का मालकिन बनाएगा. अगर आप सेकेंड वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यू कैन वेरी वेल गो आउट. दिस इज़ वेरी मच इंटरलिंक्ड. कमीशन में हम लोग को कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि जो केस आता है, शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड शी हैज़ लॉट्स ऑफ प्रूफ ऑल्सो. शी वॉन्ट्स टू गो आउट ऑफ दैट हार्मफुल रिलेशन, बट वी नो that she cannot support herself and her family. So that's why we ask her कि आप देख लीजिए, please take into consideration कि आप यहाँ से निकलने के बाद भी whether you are in a position to support yourself and your children. तो क्या होता है, many women just because they cannot support themselves, वो लोग जाके शॉर्ट स्टे होम में रह जाता है, अपना बच्चा को पति के साथ भेज देता है. देर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट. एंड आई इन माई आवर दिस वन एक्सपीरियंस एज द कमीशन मेंबर्स, वी हैव सीन दैट पॉलीगमी और प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत डीप इंटरलिंकेज है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी राइट्स का इश्यू को हम लोग एड्रेस करना चाहिए, वन ऑफ द मेन थिंग्स इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, वी हैव टू लुक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उनको हम लोग देखना पड़ेगा. वी कैन नॉट से समथिंग हियर विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के हिसाब से एसटी स्टेटस इज बाय बर्थ. सो अरुणाचली वुमेन, APST वुमेन, शी इज़ APST बाय बर्थ. अभी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस लोग बोल रहे हैं कि जो औरत नॉन APST को शादी करता है का उसका ST स्टेटस को कैंसिल कीजिए. इज़ इट पॉसिबल? आप लोग बोलिए. जो रूल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बना लिया है, जो गाइडलाइंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम कर चुका है, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ में जो नॉन APST को शादी किया है उसको ST स्टेटस नहीं दे सकता, उसको ST का राइट्स नहीं दे सकता? सो वी हैव व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी राइट्स, वी कैन नॉट ओवरलुक द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो एक APST वुमेन को दिया है. दैट्स वाई हम लोगों ने क्लॉज में बहुत क्लियरली हम लोगों ने उसमें मेंशन किया था कि यू सी मैनी विमेन आर अनमैरिड थ्रू आउट देयर लाइफ ऑल्सो. वो खुद प्रॉपर्टी बना लेता है, खुद यहाँ पे घर बनाता है, दुकान खरीद लेता है, ज़मीन खरीद लेता है, लेकिन शायद लेट 40s में वो शादी करता होगा, लेट 50s में शादी करता होगा, एंड दैट पर्सन कुड बी अ नॉन APST ऑल्सो. दैट्स वाई हम लोगों ने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर वो नॉन APST को भी शादी करता है, एज लॉन्ग एज शी इज़ अलाइव शी कैन एन्जॉय हर प्रॉपर्टी.
आफ्टर हर डेथ जिससे भी अगर उन लोगों ने इनहेरिट किया होगा, अगर उसने इनहेरिट किया है तो उसका भाई भैया जो हेयर अगर माँ पिताजी से इनहेरिट किया है तो उसके हेयर में चला जाएगा, यानी कि अगर माँ पिताजी से इनहेरिट किया है तो उसका भाई भैया में चला जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ आवर पेरेंट्स। और अगर उसने वो प्रॉपर्टी को खुद से बनाया होगा, अपना जवानी में बनाया होगा, तो भी उसके मरने के बाद उसका पति और बच्चा ये प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता है। वो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनियस ट्राइबल को सेल ऑफ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वी हैव रिटन दिस जस्ट टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। हम लोगों ने नहीं लिखा है कि ये लड़की का मरने के बाद नॉन APST को दो, उसका बच्चा को मत दो। एंड द ड्राफ्ट विच इज़ रोटेटिंग इन द सोशल मीडिया, इन द फेसबुक, इट्स एन ओल्ड ड्राफ्ट। वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट हमने बनाया था दैट इज सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया। दैट्स वाई आई हैव आस्क्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स ऑल्सो, आप लोग जिस क्या मीडिया उसके ऊपर में कमेंट कर रहे हैं, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि वो लेटेस्ट ड्राफ्ट है कि नहीं है? पीपल दे आर सेइंग सेक्शन 39, बट इट्स नॉट देयर इन सेक्शन 39, इट्स इन सेक्शन 42, 43। आप यहाँ पे देखिए, इन सेक्शन 42 and 43 we have discussed about these rights. So I request each and every member of CBOs and NGOs, Women Commission is here, Arunachal Pradesh Women Welfare Society is here. आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, our office is always open. That women are not getting their property rights. जो देता है अपना फैमिली, अच्छा इन्फ्लुएंशियल फैमिली का है तो दे रहा है। तो अगर एक बिल बनेगा कि सब लड़की को देना ही है, तो एटलीस्ट every woman will have something. अभी भी दे रहा है माँ बाप लोग ना, जिसका पास है। Your husband has committed polygamy. You don't want to be in that relationship. Okay, you have an option. ओके मैम, एक्जेक्टली आप लोग का जो 41, 42 है ना, 42, 43 एक्जेक्टली उसमें लिखा क्या है आपका पॉइंट? Read out कर। ये ना सेक्शन 42 राइट ऑफ एन APST वुमेन मैरिड टू नॉन APST ऑन इनहेरिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एन APST वुमेन मैरिड टू नॉन APST मैन shall enjoy any immovable property inherited from the head of the family in their lifetime, subject to the basic limit that the property so inherited would devolve in the event of her death upon the heir of her ancestors from whom she inherited. यानी कि उसका ancestors का जो ये heir है उसमें वापस चला जाएगा after her death. This is the thing. In section 43 we have written right of an APST woman married to non-APST on immovable property owned and acquired by her. अगर वो लड़की ने खुद वो प्रॉपर्टी बनाया होगा अपना जवानी के समय से और बाद में वो नॉन ट्राइबल को शादी किया होगा, नॉन APST को शादी किया होगा, in that aspect we have written an APST woman married to non-APST man shall enjoy the right of any immovable property owned and acquired by her in her lifetime. She will enjoy it only during her lifetime. In the event of her death, her husband and her heir would have full right of its disposal for alienation to any indigenous tribal of Arunachal Pradesh. Actually, the meaning of this act is उसका मरने के बाद उसका पति और बच्चा अगर वो प्रॉपर्टी वो औरत ने खुद बनाया है और इनहेरिट नहीं किया है, तो उसके मरने के बाद उसका पति और बच्चा उनका राइट बनेगा कि वो कोई भी इंडिजिनियस ट्राइबल को सेल ऑफ कर सकता है। तो एटलीस्ट उसको जो पैसा है, क्योंकि वो औरत का अपना हार्ड अर्न मनी है, तो उनको वो पैसा मिलेगा। और जहाँ पे उसने इनहेरिट किया है वो दैट प्रॉपर्टी विल डायरेक्टली गो बैक टू द हेयर ऑफ हर फैमिली। माँ पिताजी का हेयर जो उसका भाई बहन होगा उनको चला जाएगा। तो हियर इन नो वेयर इट इज़ मेंशन कि नॉन APST को जाएगा, बिकॉज वी हैव टू सी द लॉ इन टू कंसिडरेशन। ST status is by birth according to the Supreme Court guidelines. तो हम लोग यहाँ में एक रूल ऐसे नहीं बना सकता which is against the law of the land. अगर इसमें भी there is any controversy or if the government thinks all the CBOs are not agreeing, उसमें क्या क्लॉज डालना है, क्या वो करना है या टाइम फ्रेम डालना है, 2 साल का अंदर मरने का अंदर द लैंड हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड, वो गवर्नमेंट के ऊपर में है। आई थिंक वन वेरी गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी लॉ, I cannot say property matlab it is a very good aspect also, because most of the this one they are thinking we are against the customary practices.
इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत क्लियरली लिखा है, जो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, because in most of the Abotani tribes, the whole of the village and many villages, it belongs to a particular tribe. It belongs to Bagra clan, it belongs to Ete clan, ना ये कोई particular tribe का वो उसको पूरा clan को it belongs to that clan. So वो we are not talking about those ancestral property. We are talking about only the ancestral not ancestral land, only about the land acquired by the parents. अगर माँ पिताजी अपना लाइफ टाइम में खुद अपना प्रॉपर्टी बनाता है या अपना माँ पिताजी से मिलता है, बट विच इज़ नॉट एंसेस्ट्रल लैंड, वो प्रॉपर्टी कोई लड़की को दे सकता है बोल के हम लोग लिखा है उसमें. बिकॉज सब लोग सोचता है कि इट इज़ अगेंस्ट कस्टमरी प्रैक्टिसेस टू गिव द इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कल को एवरीवन एक्सेप्ट्स, अगर खुद देना चाहता है तो वो अपना ऊपर में है. एज ऑफ लॉ हम लोग यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बिकॉज एंड यहाँ पे अनदर थिंग इज, हम लोग यहाँ पे देर इज़ अ कन्फ्यूजन अमंग द पीपल दैट वी आर अगेंस्ट कस्टमरी प्रैक्टिसेस. यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं मेंशन किया है कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस को हम लोग डिनाई करते हैं. बट ऑब्वियसली वी हैव रिटन दैट देयर शुड बी मिनिमम 1 मिथुन शुड बी एक्सचेंज होना चाहिए शादी के समय में, विच शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ मिनिमम 1 मिथुन. तो उसके ऊपर में अगर पीपल हैव दिस थिंग्स सीबीओस कि नहीं मिनिमम नहीं होके मिनिमम 2, जैसे कि इवन इन सम सोसाइटीज़ ऑलरेडी वो लोग फ्रेम करके रखा है कि मिनिमम 2 मिथुन का एक्सचेंज होना है. तो हम लोग अभी देखते हैं कि मिथुन का प्राइस इतना बढ़ गया है कि 1 मिथुन का दाम इज कमिंग टू अराउंड मोर देन 1 लाख. सो इफ़ वी टॉक टू मच अबाउट मेनी मिथुन एक्सचेंज, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी चाइल्ड मैरिज का भी केस आता है, व्हेन द गर्ल इज़ फ्री फ्रॉम दैट केस ऑल्सो, फिर भी उसको मिथुन वापस करना पड़ता है. जब तक वो मिथुन वापस नहीं करेगा तब तक वो क्लैन मेंबर लोग उसको छोड़ता नहीं. 10 बच्चा होने के बाद भी उसको किडनैप करके लेके आता है. वो आप लोग देखिए बहुत सारा ट्राइब में ऐसा है, अबोतानी ट्राइब में भी है और हमारा ईस्टर्न बेल्ट में भी 1-2 ट्राइब का ऐसा है. So that is the thing. That's why we said कि marriage will be done according to the customary practices, provided the number of मिथुन्स वहाँ पे कम से कम एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि जो महिलाओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए. मैडम एक जगह About 60, it could be 70, जब 80. तक वो औरत रहेगा आप रह सकता है. जब तक वो औरत जिंदा है, because we cannot snatch her right. She कॉन्स्टिट्यूशनल is by birth. आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस देखिए, आप नॉन ट्राइबल को शादी करो, नॉन एपीएसटी को शादी करो, एसटी स्टेटस बाय बर्थ. सो वी कैन नॉट से कि आप प्रॉपर्टी देने से सिर्फ इसको दीजिए उसको मत दीजिए. वी हैव टू टेक द लॉ इनटू कंसिडरेशन. एंड मैं एक लेट मी फिनिश. उसके बाद भी दैट्स व्हाट वी आर कमिंग टू द गवर्नमेंट. वी हैव सबमिटेड इट टू गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट सीबीओस को बुलाएगा, एनजीओस को बुलाएगा, उसके बाद हाँ वो तो गवर्नमेंट के ऊपर में है. ड्रग का बारे में बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा वो बात का बारे में. हाँ. वो बात का बारे में. अभी आपका ड्रग का बारे में मेरा कंसंट्रेशन और लोगों का भी जो अभी जो रिएक्शन है, जो आप लोग तो टोटली अलाउ कर रहे हैं ना एक आदमी को, मतलब वो औरत जब तक रहेगा आप यहाँ रह सकता है उस प्रॉपर्टी में. हाँ, फॉर ट्राइबल, फॉर एपीएसटी वुमेन ऑल्सो एंड नॉन एपीएसटी हु इज मैरिड, नॉन एपीएसटी वुमेन हु इज मैरिड टू एसटी ऑल्सो द सेम थिंग. एपीएसटी वुमेन जो मैरिज करा उसे बात नहीं कर रहा है. Yes, surely as long as she is alive, जब तक वो जिंदा है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है. उसके मरने के बाद अगर वो इनहेरिट किया है अपना माँ पिताजी से, वो ऑटोमेटिकली उसका भाई बहन को वापस चला जाएगा, उसका माँ पिताजी को वापस चला जाएगा. एंड अगर वो प्रॉपर्टी उसने खुद बनाया है अपना जवानी में, जब शादी से पहले भी बनाया होगा, अपना खून पसीना करके वो बनाया होगा, तो उसमें सेल कर सकता है. फिर मैडम इसमें एक बात होता है, दे विल नॉट इनहेरिट, वो सेल करना पड़ेगा कोई भी इंडिजिनस ट्राइबल को. एक ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग का एपीएसटी लड़की नॉन एपीएसटी जब अपना बच्चा होता है उसको डायरेक्ट एसटी राइट दे रहा है. वो ट्रेंड में इसमें फिर कंफ्लिक्ट हो रहा है ना आपका. नहीं सर, उसके बारे में देर इज ऑलरेडी वन कमिटी एस जेटा का अंदर में, उसके बारे में ऑलरेडी एक कमिटी फॉर्म हुआ है कि व्हाट विल बी द राइट ऑफ अ एसटी मदर एंड एसटी नॉन एपीएसटी फादर का जो बच्चा है, ऑफ स्प्रिंग है, उसका क्या राइट है. एंड हियर टोटली वी आर डिनाइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफरिंग. प्लीज बी क्लियर, यहाँ पे हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि ट्रांसफर होना है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर एट ऑल.
अगर वो लड़की खुद बनाया है, जवान में बनाया होगा, शादी से पहले बनाया होगा, तो उसके मरने के बाद उसका पति और बच्चा वो प्रॉपर्टी को कोई भी यहाँ का इंडिजिनियस ट्राइबल को सेल करना है बोल के हम लोग डाला है. इन नो वेयर इट इज मेंशन कि ट्रांसफर होना है. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दिस. आप प्लीज डोंट क्रिएट कंफ्यूजन. आई एम वेरी क्लियर. क्लियर होने के लिए मैं ये डिस्कशन हाँ. कर रहा है. मतलब आप इनडायरेक्टली मतलब वो आदमी नॉन एपीएसटी जो इनडायरेक्टली ये एपीएसटी गवर्नमेंट का साथ एंजॉय कर सकता है अरुणाचल का प्रॉपर्टी में. नो 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 आपका ये इनडायरेक्टली ओपन कर रहा है ना ये. नो, इट्स नॉट ओपनिंग. आप उसमें वो एंजॉय तो कर रहा है ना सी इनडायरेक्टली. हम लोग अगर ये होगा रूल बनाएगा, इफ सपोज देयर वाज समथिंग लाइक दैट कि नॉन एपी, जैसे कि अभी बहुत मीडिया में बोल रहा है कि जो नॉन एपीएसटी को शादी करता है उसका एसटी स्टेटस छीनना चाहिए. अगर आप लोग ऐसा बात करेगा तो यू हैव टू सी कि लॉ सपोर्ट करता है कि नहीं, वेदर यू आर टॉकिंग लॉफुल थिंग, लॉफुल है कि नहीं है ना, वो बात आप लोग देखना पड़ेगा. अभी हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि दूसरा असम ट्राइबल को भी यहाँ में ट्राइबल स्टेटस देना है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडॉप्टेड और ऑल, वी आर टॉकिंग अबाउट हु आर बाय बर्थ एसटी वुमेन. अगर कल को सुप्रीम कोर्ट बोलता है उनका स्टेटस नहीं है एसटी स्टेटस का, तो वी डोंट हैव प्रॉब्लम. लेकिन अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दे बाय बर्थ वो लोग एसटी स्टेटस देना है उनको, दैट डज नॉट चेंज आफ्टर मैरिज. तो वी कैन नॉट डू समथिंग इलीगल ना. हम लोग जब लॉ फ्रेम कर रहा है, इट हैज टू बी लीगल ना, इट कैन नॉट बी समथिंग इलीगल. हम अपना मन चाहे लॉ नहीं बना सकता. वी हैव टू लुक इनटू द लॉ ऑफ द लैंड. जब हम लोग लॉ का बात करता है तो इट हैज टू बी लॉफुल ना, इट कैन नॉट बी इलीगल. एंड वेदर टू कीप दिस क्लॉज और नॉट, वेदर गवर्नमेंट आफ्टर वाइड कंसल्टेशन विद ऑल द सीबीओज ये क्लॉज को रखेगा कि नहीं, वो गवर्नमेंट के ऊपर में है. बाकी हम लोग गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट करता है कि ये जो बिल हम लोगों ने बनाया है, बिल ड्राफ्ट, वी हैव मेड इट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल. इट्स डन सिंस 1979. Since 2005 the Women Commission has been working for women empowerment, and our 5th body of Women Commission since 2019 we are specially working on these two particular field. So इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को अपना तरफ से यही रिक्वेस्ट करेगा कि जितना हो सके जो वाइडर कंसल्टेशन है, जितना कंसल्टेशन है नेसेसरी ऑन ईच एंड एवरी क्लॉज, अगर जो ये जिस क्लॉज में ज़्यादा ये है उसके बारे में भी वो अपना डिस्कस कर सकता है. लेट गवर्नमेंट डिसाइड वेदर व्हाट टू डू, व्हाट एडिशनल कॉज 42 में अगर कुछ चेंजेस ला सकता है कि नहीं, 43 में टाइम बार देना है कि नहीं, दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट. हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है. हम लोग वही चाहते हैं इवन फ्रॉम वुमेन कमीशन एंड चाइल्ड कमीशन एंड अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एंड एपेक्स वुमेन एनजीओ. हम लोग गवर्नमेंट को कंसिडर करने के लिए बोलेंगे. अदर देन सम पर्टिकुलर सेक्शंस जिसमें मैक्सिमम सीबीओज का प्रॉब्लम है, उसमें क्या करना है नहीं करना है, we'll leave that up to the government. Are you saying that modification can be made here? Yes. Yes, yes. अगर वहाँ पे अगर कुछ modification, suppose कोई लोग जैसे कि they are calling up and saying कि जो may instead of using the word will have right full right for its disposal, उसका जगह में आप लोग थोड़ा ये कर दीजिए कि have to ना ऐसे टाइप का आप लोग यूज कीजिए. तो वो तो गवर्नमेंट का ऊपर में, because now the draft is not with us. We have already submitted. अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस टाइप का वर्ड यूज कर सकता है कि इन द इवेंट ऑफ हर डेथ हर हस्बैंड एंड हर हेयर शुड डिस्पोज एंड एलियनेट इट टू एनी इंडिजिनस ट्राइबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को तो वो शुड का वर्ड आप लोग यूज कर सकता है उसमें. दैट थिंग कैन बी डन. हम लोग किसी का हम लोग भाभी है, किसी का माँ है, किसी का दादी माँ है, उन लोग का अभी छोटा छोटा बच्चा भी मोबाइल पकड़ता है, उसमें उसका नानी को किसी रात में किसी के साथ सो के आया है. ये दिस इज़ टू मच. आप लोग भी ख़राब लगेगा ना, आपका ग्रैंड मदर को ऐसा बोलेगा है कि नहीं. ये दिस इज़ टू मच. ये होने से कोई बात नहीं है. फॉर द कोज ऑफ लार्जर इंटरेस्ट अरुणाचल वीमेन के लिए हम लोग ये सब गंदा चीज़ को भी वी कैन इजीली डाइजेस्ट ना, इसका कुछ नहीं है. और अभी हम लोग बहुत अच्छा लगता है क्या जो आगे इतना अभी राधेलो मैडम चेयरपर्सन बुलाई जैसा मीटिंग में इतना बुलाते कोई नहीं आता है, लेकिन फेसबुक में इतना सोशल मीडिया में एक्टिव है अपना घर में बैठ के. ऐसा तो हम लोग भी बुला सकता है किसी को जो अभी जो सेक्शन उन लोग का हिसाब से 39 वेरेज हम लोग का हिसाब से 42 43 है असल जो ड्राफ्ट का हिसाब से. तो उसमें जो बोला है कि एज ए विंग अरुणाचली राधेलो मैडम बोला है
हम खुद अरुणाचल का में ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हम लोग कंजर्वेटिव, क्योंकि अरुणाचल कंटेक्स में ना, क्योंकि आज तक हम लोग नॉन अरुणाचल है। मेरा अपना दीदी को भी हम सी इज़ मेरिड टू नॉन अरुणाचल है, हम उसको मेंबरशिप नहीं दिया है, क्योंकि आज का जैसा कुछ क्रुशियल चीज़ आता है ना, जिस चीज़ को हम लोग दूसरा के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसा वाला चीज़ आ सकता है बोल के। लेकिन टुडे इज़ 21st सेंचुरी, अभी तो हम लोग सोचता है कि हम लोग का थिंकिंग को भी थोड़ा हम लोग भी इतना कंजर्वेटिव भी नहीं होना है, क्योंकि हम लोग को भी यूनिवर्सिटी का कहाँ का यंग एकेडमिशियन लोग हम लोग को इतना गाली दिया है, आप लोग का वही इतना, आप लोग क्यों इतना कंजर्वेटिव है, आप लोग भी थोड़ा ढीला होना है बोल के। तो कोई बात में सही भी है, कोई में इतना ढीला होना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि वी हैव सीन द जनरेशन, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ 60 ईयर्स मीन्स 1 जनरेशन 20 ईयर्स, हम 3 जनरेशन देखा है। वो भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 ईयर्स 22 23 1 जनरेशन आधा देखा होगा। जो जनरेशन हम आप लोग नहीं देखा उसको भी देखा है, और आप लोग जो देखा वाला है देखा है, तो आप लोग सोचा आप यू में भी PhD स्कॉलर और क्या क्या स्कॉलर हो सकता है, लेकिन what हम लोग नॉलेज एक्सपीरियंस अर्न किया है एज वुमेन एक्टिविस्ट 79 से अभी तक। पेमा खांडू साहब भी जन्म भी नहीं हुआ, ऐसा समय से हम लोग ये किया है, तो उसको लिए हम लोग को आप लोग रिगार्ड करना है ना। तो अगर गलती भी हो सकता है ड्यू टू आवर एज फैक्टर, समटाइम बाय टंग स्लिप, हम लोग कुछ गलती भी हो तो उसका ग्रैंड मदर हिसाब से भी कंसिडर कर सकता है या कुछ करेक्शन भी कर सकता है। हमको सबसे दुख लगा है कि पेमा खांडू साहब को हमारा इतना ईयर्स का एक्सपीरियंस, 42 ईयर्स का सोशल एक्टिविस्ट का जो एक्सपीरियंस है, इतना ये देखा है, चीफ मिनिस्टर देखा है, कोई उसका जैसा वेलकमिंग नहीं है। स्पेशली वुमेन लोग को देखने से उसका माइंडसेट में सोचता है कि ये लोग तो पोलीगामी के लिए आया होगा, पोलीगामी कोई औरत का ये बारे में ऐसा दिमाग में आता है माइंडसेट में। लेकिन पेमा खांडू साहब इतना पेशेंट हियरिंग किया है, औरत को रेस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया है। तो एक चीफ मिनिस्टर, वो भी 17 तारीख को 18 को ये महीना का, उन लोग तो इतना बिजी था, आप लोग सोशल मीडिया में देखा, दिल्ली में कहाँ में ये था, वो तो 18 में हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया है, उसको एक चीफ मिनिस्टर होकर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टेचुटरी बॉडी है, हम एज ए चाइल्ड राइट कमीशन चेयरपर्सन, हम लोग को तो वो तो मिलना ही है। और हम लोग जो लार्जर इंटरेस्ट फॉर द कोज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन का जो भी रिकमेंड करेगा एक चीफ मिनिस्टर उसको एक्सेप्ट करना ही है। तो उन लोग पब्लिक का क्यों औरत लोग का ये लेना है, उन लोग का जो मतलब मेंटेलिटी हिसाब से ये वुमेन का मेमोरेंडम को भी क्यों रिसीव करना है। पेमा खांडू इसलिए स्टेप डाउन करो और हम लोग को रेजिग्नेशन दो कि रेजिग्नेशन दे। APWS हम कमीशन हिसाब से आप लोग बोल, APWS में क्या हम लोग कोई दरमा देता है क्या हम लोग को रेजिग्नेशन देने के लिए? ये सब मतलब एक तो मेंटली सिक आदमी लोग ये क्या, हम तो बहुत दुख लगा है। और एक तो ये चीफ मिनिस्टर को उल्टा थैंक्स देने का जगह में कोई भी रास्ता खराब होगा तो रिजाइनेशन दो, कुछ को दो, नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाता है, उसको जो करो आप लोग। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ में पॉलिटिकल रोटी नहीं सेकना है। One thing I would request you all ना, आप लोग उसको पॉजिटिवली देखिए। Now also we have many not this one parents who might have given, लेकिन it will ensure that ultimately it goes back to indigenous tribal। आप लोग पॉजिटिव वे में भी देखिए ना, there are many already women who are enjoying, but this act ensures that this land will ultimately come back to the indigenous tribal। आप लोग हर चीज को पॉजिटिवली देखने से then you will see the thing। और सर आपका बारे में इसको कैसे चेक एंड बैलेंस करेगा वो? नहीं, जब हम लोग ये बात किया था तो इसमें वी थॉट कि एक टाइम लिमिट है, वो चीज अगर हम लोग नहीं भी डालने से, इफ गवर्नमेंट इज एक्टिव 1-2 साल का अंदर में विद इन द डेथ ऑफ दैट लेडी द थिंग शुड बी ट्रांसफर्ड। वो तो गवर्नमेंट का काम है कि नहीं? एंड स्टूडेंट बॉडी लोग तो इतना एक्टिव है ही, तो दे कैन आस्क ऑल्सो। नहीं तो हम लोग लीगली वी आर नॉट एबल टू पुट दैट क्लॉज, क्योंकि we have discussed also even with advocates, we have called Are you saying that modification can be made here? yes yes। अगर वहाँ पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन सपोज कोई लोग जैसे कि दे आर कॉलिंग अप एंड सेइंग कि जो मे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड विल हैव राइट फुल राइट फॉर इट्स डिस्पोजल, उसका जगह में आप लोग थोड़ा ये कर दीजिए कि हैव टू ना, ऐसे टाइप का आप लोग यूज कीजिए। तो वो तो गवर्नमेंट का ऊपर में, बिकॉज नाउ द ड्राफ्ट इज नॉट विद अस, वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस टाइप का वर्ड यूज कर सकता है कि इन द इवेंट ऑफ हर डेथ हर हस्बैंड एंड हर हेयर शुड डिस्पोज एंड एलियनेट इट टू एनी इंडिजिनस ट्राइबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को तो वो शुड का वर्ड आप लोग यूज कर सकता है उसमें, दैट थिंग कैन बी डन। और इसके
पॉइंट हाँ। मैडम जैसे आप बोल रहे हैं कि चेक करना इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू जस्ट सबमिट द पॉइंट्स जो आप लोगों को लगता है कि ये सही है फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आता है एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज फेलिंग टू चेक दिस चीज ये चीज लोगों देन हु विल बी टू ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट या आपका आई थिंक ऑन दैट थिंग आपसू हम लोग का आपसू भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड वी सपोर्ट देयर कॉज ऑल्सो कि यहाँ पे जो ट्राइबल लैंड्स को सेव करना है वो सब बात करता है वी आर ऑल्सो एग्रीइंग विद देम नहीं, आपसू तो इसीलिए हम लोग आपसू को भी बोला है Still against your case. नहीं लिसन वी डोंट मैटर इट डजंट मैटर बिकॉज दे हैव कम फॉर डिस्कशन अगर आपसे आज बोलता है दे हैव अ राइट टू से बिकॉज दे केम फॉर द डिस्कशन ना बाकी लोगों को हम लोग बुलाता है आता नहीं है अभी हम लोग कितना सीबीओस को बुलाया है अभी सीबीओस का मेंबर लोग भी कोई डालता है दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ना वेयर यू आर कॉल्ड आप लोग आना चाहिए नहीं, राधे। तो आपसू का ये बहुत अच्छा चीज है कि एटलीस्ट नहीं, आपसू तो नहीं करेगा, वो तो बेचारा रिश्तेदार One more thing. You have mentioned about यहाँ पे एक्चुअली चेक एंड बैलेंस का ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो करेगा। उसमें टाइम लिमिट नहीं सॉरी इसमें जस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि विद इन अ ईयर ऑफ 2 या मरने का 1-2 साल का अंदर में दिस थिंग शुड बी डन बोल के अगर होगा तो मुझे लगता है वो कंपलसरी अगर लिखा है तो उसमें अगर कुछ पेनल्टी डालेगा नहीं होने से District administration। वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तो कर ही सकता है ना मैडम लास्ट तो गवर्नमेंट कर सकता है इसमें आपसू हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डाला है मेरी The people who want to take advantage of this section, Read they out have to करो। get registered under this act. तो हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश में अभी तक जो भी मैरिज रजिस्ट्रेशन करता है इट इज डन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट एंड मोस्ट ऑफ द सेक्शंस हियर वो जो ऑलरेडी स्पेशल मैरिज का चल ही रहा है वहाँ से हम लोग ज़्यादातर लिया है एंड इन एडिशन टू दैट मिजोरम का हम लोग लिया है सो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग न्यू इट्स समथिंग विच इज ऑलरेडी बीइंग डन और पेनल सेक्शन का जैसे आप लोगों ने मैडम को भी पूछा है ना जैसे आप लोगों ने पूछा है इसमें पेनल सेक्शन का क्या है ये अगर एक्ट बनता है जिस दिन बनेगा उसका बाद ही जो पॉलीगनी कमिट करता है उसका ऊपर में जैसे स्पेशल मैरिज में पेनल सेक्शन है वही होगा लागू बट इट वॉन्ट बी रेट्रोस्पेक्टिव मुझे लगता है वन ऑफ द इनडायरेक्ट जो आदमी का फेयर है आई थिंक इज बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट जो पेनल सेक्शन लगेगा वो सबके ऊपर लागू होगा ना it will be done only after this bill becomes an act and if the wife agrees if the wife has no problem then who will complain unless somebody complains तो अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी वो चीज़ तो आएगा ही इसमें क्योंकि हिंदू लॉ में भी होता है बट वी वॉन्ट एनकरेज दैट टाइप ऑफ थिंग एंड मुझे लगता है कि ये डर है ज़्यादातर जो यूथ में है जो बहुत ओपोज कर रहा है who are not this one member of proper this one student union also I think maybe कल को वो लोग सोच रहे हैं कहीं में ये एक्ट होने के बाद भी हम 2-3 शादी करेगा क्या ऐसे सोचने वाला है क्या मेरा मन में कभी कभी हमको ऐसा भी फील होता है बट आई वुड रिक्वेस्ट द मीडिया पर्सन्स आप लोग जितना हो सके आज का जो मीटिंग है ना आप लोग प्लीज पॉजिटिव वे में लीजिए बिकॉज सम एंटी सोशल एलिमेंट्स माइट बी ट्राइंग टू हाईजैक द होल इशू फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट तो आप लोग एज अ मीडिया आई थिंक इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग प्रॉपरली जो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं आप प्रॉपर वे में उसको फोकस कीजिए ना बनेगी वो लोकल अपना लोकल को ही हाँ आप जो बोल रहे हैं वो बात भी ना आप लोग ऐसा दिस वन रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ द सोसाइटी आप लोग भी सोच भी रहा होगा तो आई थिंक आप लोग भी अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत भी नहीं हो सकता है दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग बार बार ना कि अगर वो लड़की ने वो एक्वायर किया है शादी से पहले भी एक्वायर किया होगा तो आई थिंक हमको लगता है मेरा जो सोच है कि 42 एंड 43 के बाद मोर पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर दे आर गेटिंग मैरिड मुझे जो लगता है पॉजिटिवली इफ यू सी दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग मैरिड दे बिकॉज दे नो सम ऑफ देम विल नॉट ऐसे नहीं है कि हर कोई मांगेगा एंड वी हैव नॉट रिटर्न एनी परसेंटेज आप 20% देना है 10% वो तो अपने पेरेंट्स का ऊपर है कैपेसिटी का ऊपर है इफ सम गर्ल फील कि उसको प्रॉपर्टी जैसे भी देना चाहिए हस्बैंड से भी नहीं मिल रहा है ये है तो उनके लिए एक रास्ता है यू डोंट नो मेनी विमेन जैसे आपने जार्जो मैडम कभी सुना है शी इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग व्हेन शी इज टेलिंग इनडायरेक्टली वुमेन लोग मार्केट में आ रहा है पति छोड़ देता है 4-5 बच्चा है कहाँ जाएगा उसका माँ पिताजी मर गया मिट्टी इज ऑलरेडी डिवाइडेड बिटवीन द ब्रदर्स मिट्टी ज़्यादा नहीं है वो क्या करेगा छोटा मोटा पान गुमती खुलेगा पान गुमती में दारू रखेगा तो कभी कभी आप लोग भी सोचना है जब एक औरत
आप एक लड़का होके, यू माइट बी ए ग्रेजुएट, यू माइट बी ए पोस्ट ग्रेजुएट, आपको नौकरी मिलेगा बोल के क्या ये है गारंटी है? जो लड़की लोग यहाँ पे पढ़ा लिखा लड़की है, हर किसी को नौकरी मिलेगा बोल के तो बात नहीं है ना। अगर इन फ्यूचर उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, कुछ नौकरी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, एक छोटा मोटा लैंड के उसमें तो बल पे वो कुछ ना कुछ तो कर सकेगा ना, चलो एक घर तो बना लेगा। आप लोग BSN मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में भी ना आप लोग उसको सोच के देखिए कि आपका बहन, आपका छोटा बहन हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, कल को आप लोग शादी करेगा, आपका बेटी होगा, आपका छोटा बहन होगा, उसको अगर आप लोग बिल्कुल प्रॉपर्टी राइट डिनाई करता है तो उसका कंडीशन क्या होगा आप लोग खुद सोच लीजिए। व्हेन यू आर दिस वन, आई डोंट से कि अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देता है, देता है, बट अगर वो लॉ बन जाएगा इट विल गिव मोर सिक्योरिटी टू द वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गर्ल चाइल्ड को और सिक्योरिटी देगा। आप देखिए कितना क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड बढ़ रहा है। कोई रिलेटिव को पढ़ाने के लिए भेज देता है कि नहीं, किसी रिलेटिव का साथ पढ़ने लिखने के लिए भेज देता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड एंड ऑल। तो मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल। आपको डाटा भी अगर वुमेन कमीशन का जो हम लोग फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, उसको भी आप लोग देख सकता है। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट केसेस इन वुमेन कमीशन इज डोमेस्टिक वायलेंस का। तो डोमेस्टिक वायलेंस वो जानता है उसका पति मारेगा, पीटेगा, माता पुटा देगा, मारेगा, नॉट फॉर एवरी वुमेन। उसके बाद वो क्या करेगा, वो मालूम है वो हस्बैंड जो उसको फिजिकली टॉर्चर करते रहता है, मेंटल टॉर्चर करते रहता है, बट शी हैज़ नो अदर वे, कुछ रास्ता नहीं है उसके पास, अकेला नहीं बैठ सकता, या तो निकल के किसी का सेकंड बीवी बन जाएगा ना, अकेले तो बैठ नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली जो आप जारजू मैडम को भी सुना है, वो भी कहीं चीज़ को, सच बात को भी बोल रहा है, आप लोग उसको भी थोड़ा गौर कीजिए। अनलेस आप लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए एक टुकड़ा मिट्टी नहीं देगा लड़कियों को, वो लोग कहाँ जाएगा? हम लोग का ज़माना में हो गया, पॉलीगमी हो गया, जो हो गया, एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग ऐसा रूल कानून बनाना है जिससे हम लोग बेटी लोग सेफ रहें। और सेक्शन 40 एंड 42 एंड 43 के बारे में मैं बार बार यही कहूँगा, हमारे तरफ से जो सबमिट किया है वो फाइनल नहीं है। गवर्नमेंट, ये ड्राफ्ट बिल है, गवर्नमेंट वाइडर डिस्कशन करेगा विथ ऑल द CBOs, उसके बाद वो कोई भी डिसीजन पे आएगा। दैट वाज द क्लियर स्टैंड ऑफ द ऑनरेबल CM। तो आप लोग ये चीज़ को जितना हो सके मीडिया के तरफ से भी आप लोग थोड़ा ये मास ये करने से ठीक है ना, नॉलेज को आप लोग थोड़ा सा ये कर दीजिए। ऐसे कोई एंटी सोशल एलिमेंट हाईजैक करेगा और इसी इश्यू में गवर्नमेंट को अटैक करेगा, वो बात ठीक नहीं है। किसी को पर्सनल अटैक करेगा, किसी औरत को पर्सनल अटैक करेगा, तो वो आपका माँ बहन कोई भी हो सकता है ना।